everyone, welcome back to my podcast Artful Mind. Today I have with me Badadi, who is doing PhD at Washington University, St. Louis. I'm so glad, Badadi, that you joined with me today. A warm welcome to you. How are you? Thank you, Tashindi, for inviting me to the podcast. I feel really grateful. I'm good. How are you? I'm doing well. How's life there? You tell me about PhD yourself. life it's is the same. So I can tell a little bit about myself. So I completed my bachelor's of technology in biotechnology from IIT Guwahati, and then I joined again IIT Guwahati in the same lab to pursue my master's in technology, same in biotechnology. And I did my master's thesis under Dr. Selvaraju Narayanasamy, who we share the both PI. Right. And then I joined as a PhD student in Washington University in St. Louis in the Department of Energy, Environmental, and Chemical Engineering. So right now I'm a fourth year PhD student and working. My primary research field relates to the like rapid and sensitive detection of bioaerosols, particularly pathogen in the airborne phase. Okay, so now you're in fourth year. So, Yeah. okay, when you joined there, तो वहाँ पे क्या difference लगा तुम्हें US का जो PhD course structure है? Usually 4 years is the maximum, or right? No, 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 no. So US में the PhD structure is a bit different from the Europe. So in US you have to first come and like complete your coursework. So there are like it to attain a PhD degree there needs to be three criteria to be fulfilled. First one is the coursework. Depends on the university, but roughly around 12 courses. Like each courses is of 3 credit, तो 36 क्रेडिट रिक्वायरमेंट होता है कोर्स से. एंड देन यू विल हैव योर research side. So research side depends like mostly in all of the university they follow the format that you need to present a proposal defense and pass it. I guess in IIT it's called SOS, state of the art seminar जो होता था, but it happens later in your PhD career. Like some people do it in their third year, mostly in the third year or early fourth year. They do the proposal defense where they have to come up with certain objectives and some preliminary results and present it in front of the doctoral committee. And they need the approval of the doctoral committee that the objectives are yeah doable and you have done some preliminary experiment to support your hypothesis. And final is the PhD defense. तो ये तीन चीज करना होता है PhD डिग्री के लिए. एंड द कोर्स स्ट्रक्चर इज अ बिट डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर IIT में द डिफरेंस इज लाइक कि हम एक सेमेस्टर में 5-6 कोर्सेस ले लेते थे, but it's difficult here. If you are in a PhD program, the maximum you can take is 3 courses. It's like 3 course ka load is equal to almost 6 courses in IIT, 5 or 6 courses in IIT. And the stark difference is IIT में हमारा mostly 4 exams होते थे. Quiz 1, mid sem, quiz 2, end sem. Like roughly I'm saying in a subject. But yaha there is a culture of homework or assignment every week. तो क्लास में दो every week there will be 2 lecture और फिर homework आ जाएगा. And homework is pretty extensive subjective format. तो initial years में मतलब first years में कुछ कुछ courses का homework पूरा एक एक हफ्ता लग जाएगा solve करने को. And but the exam will be easier. So homework will have certain weightage like 40 to 50%. Then you have 2 exams like the mid semester and semester. uh, वो हो सकते हैं around like 20% और sometime there will be some class presentation or short quizzes. ऐसा करके 100% होता था पूरा courses का. तो यहाँ पर एक course का मतलब जो टाइम लाइन है इट्स प्रिटी पैक्ड अप. अगर अच्छा एक बहुत डेडिकेटेड सब्जेक्ट का तुमको रिसर्च करना है और उसका रिलेटेड कोर्स ले रहे हो
देन इट विल बी प्रिटी टाइम टेकिंग। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि तुम कोर्स आ गया, जैसे आईआईटी में ये काफी कल्चर है, यहाँ पर तो नहीं है एटलीस्ट। मतलब सारे आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्लाइड्स पढ़ लिए, एग्जाम जाके दे देंगे, एंड यू स्कोर डिसेंट डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर है कि तुमको होमवर्क भी करना पड़ेगा बिकॉज दे कैरी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वेटेज ऑफ योर फाइनल ग्रेड। और होमवर्क करते करते तुम सीख भी लोगे, और फाइन मतलब मिड सेम या फाइनल थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कोर्स वर्क थोड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड डिजाइन है कि स्टूडेंट को कैसे हम एंगेज करके रखें कोर्स वर्क्स में। एंड इंस्ट्रक्टर्स आर प्रेटी नाइस, एंड ऑल्सो कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट है। आईआईटी में भी था, अगर आईआईटी में कुछ कभी कभार प्रोजेक्ट मिलता था तो सब कोलेबरेट करते थे, यहाँ पर भी कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट है। बट दे कांट टॉलरेट एनी एकेडमिक लाइक डिसइंटीग्रेट, लाइक अगर तुम कॉपी कर रहे हो और सीधा छाप दिए आंसर्स। तो कोर्स का टीचिंग असिस्टेंट होता था जो मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट होते थे, ग्रेड करते थे, एंड इफ दे फाइंड आउट कि टू स्टूडेंट्स एट द एग्जैक्ट सेम आंसर, तो उनके हाथ में है कि यू कैन बी दे कैन रिपोर्ट इट टू द इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर को, एंड प्रोफेसर मोस्टली वार्निंग दे देते हैं बहुत। अदरवाइज अगर वर्स्ट केस पॉसिबल कि तुम कोर्स से निकाल दिए जाओगे या फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, डिस्कस कर सकते हो, तुम समझ सकते हो, अपने हिसाब से तुमको फिर वर्कआउट करना है प्रॉब्लम। तो ये काफी एक डिफरेंस है कोर्स वर्क्स में कंपेयर टू इंडिया टू एंड यूएस। एंड कुछ यहाँ पर एक दूसरी अच्छी चीज है कि सम ऑफ द कोर्सेस आर रियली रिलेटेड टू योर ongoing रिसर्च और द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च जो चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत आउटडेटेड, कोई काम नहीं आएगा, मतलब ऐसे बस पढ़ लिए फिर भूल गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर काफी एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कोर्सेस हो सकता है कि कोर्सेस का नाम और सिलेबस से तुमको लगेगा कि काफी फंडामेंटल कोर्स है, बट इन दैट कोर्स दे विल डिजाइन द कोर्स इन सच अ वे दैट दे विल टीच यू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। In the same time they will also show you how it is being applied to the current research field, कि क्या क्या स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च आ रहा है। तो रिसर्च पेपर डिस्कशन होंगे या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स देंगे कि देखो यहाँ पर हम क्लास में ये पढ़े, ये चीज इस पेपर में इन्होंने ऐसा ही किया है। तो काफी तुमको लगता है कि अच्छा जो पढ़ रहे हैं दिखता है कि यहाँ हो रहा है रिसर्च फील्ड में, तो दैट्स अ गुड थिंग। आईआईटी में भी कुछ कुछ क्लासेस ऐसे थे जहां पर लाइव एग्जांपल्स देते थे टीचर, बट मोस्ट ऑफ द कोर्स वर्क ऐसे ओरिएंटेड नहीं था हमारा। काफी मतलब इधर फंडामेंटल थियोरिटिकल या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा के हम भूल गए, हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ज्यादातर कोर्सेस ऐसे रहता है कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहता है। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कोर्स वर्क। आई थिंक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि अभी एज ए फैकल्टी मेंबर मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं कि बाहर पीएचडी करना है या मास्टर्स करना है। यस। तो तुम ये बताओ, एंड दैट इज द मोटिव टू इनवाइट यू, कि ये बताओ कि तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस या फिर जो तुमने अप्रोच किया था वो किस वे से किया था, तो वो आई थिंक विल बी हेल्पफुल फॉर माय स्टूडेंट्स। Okay, so that's a good question. So application process specifically US based मैं बता रहा हूँ because the Europe one is like broadly similar but total थोड़ा different हो जाता है यूरोप का application process. So US में since you are applying to the university or the department specifically, तो यहाँ पर अभी करेंटली देर आर सम चेंजेस, इट डिपेंड्स टू द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि उनका रिक्रूटिंग स्टाइल कैसा है पीएचडी स्टूडेंट। इन सम यूनिवर्सिटी दे विल रिक्रूट यू as a PhD student and then you have to do rotation and fix your lab. In some of the university you are directly recruited as a PhD student जहाँ की तुम्हारा lab already fixed है। तो process ये है कि you need first the SOP, statement of purpose. It depends on the university कि either there will be one SOP or some university demand कि तुम्हारा एक research background or like research kind of document and there will be a personal statement। तो either तुम्हारा SOP होगा या फिर ये दो डॉक्यूमेंट होंगे कि तुम्हारा research background and your personal statement। तो
ब्रॉडली एसओपी में ऐसा होता है कि यू गिव योर इंट्रोडक्शन कि अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, देन यू से लाइक व्हाई यू थिंक दैट यू आर ए गुड फिट टू द डिपार्टमेंट, तुम इस डिपार्टमेंट में आके तुम कौन सा टाइप का रिसर्च करना चाहते हो और कौन से फैकल्टी और क्या क्या रिसर्च फील्ड है और तुम्हारा मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा मैच कर रहा है। इट्स अ ओवरव्यू ऑफ एसओपी। अगर टू डॉक्यूमेंट स्टाइल में जा रहे हो तो वहां पर बेसिकली यू आर डिवाइडिंग द एसओपी इन टू सेक्शन। इन वन सेक्शन, वन document called the research document, you solely focus on your academic and research experience। बताते हो कि तुम्हारा कोर्स वर्क या फिर प्रीवियस बैचलर्स का एक्सपीरियंस या मास्टर्स का एक्सपीरियंस में क्या क्या किए हो। एंड पर्सनल स्टेटमेंट इज लाइक तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है एंड हाउ यू कैन लाइक इम्पैक्ट टू द सोसाइटी if you join this particular university or in this department, how this department or the university gives you the platform so that you want to join this university to impact in a greater way towards the society। वो थोड़ा पर्सनली स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एसओपी है। सेकंड इज लाइक यू नीड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यूएस में एटलीस्ट 3 LORs चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। it's good to have 4 or 5 professors in your connections who can give you the LORs। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रोफेसर अवेलेबल नहीं रहते, दे विल एग्री टू यू कि हम LOR दे देंगे, जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उनका नाम डाल दिया एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसलिए बेटर है कि तुम्हारे पास 4-5 ऑप्शन हो जो कि दे सके। And third is the like GRE test that depends on the university। कुछ डिपार्टमेंट का कुछ प्रोग्राम में GRE is not mandatory, but कुछ डिपार्टमेंट GRE is mandatory। So it's sometimes better to have a GRE score, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी मांग भी नहीं रहा है। अगर तुम्हारा decent GRE score है, let's say around 320 325, anything above 325 is excellent, like it's fine। अराउंड 320 तुम बस अटैच कर दो GRE स्कोर, सो probably in the later round of your application they can find you like, oh, you have a GRE score and you have some 320 score, so it's fine। So that can be sometimes the deciding factor between two equally weighted application। Or fourth is the mandatory English language test, either TOEFL or IELTS। मोस्टली पीपल टेक हियर टोफल, तो टोफल का एग्जाम दे दो, उसमें डिसेंट स्कोर करना है। आउट ऑफ 120 यू जस्ट नीड मोर देन 100 और समथिंग, सो यू विल बी लाइक गुड एनफ टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ होता है अराउंड 90, प्रोबब्ली आई थिंक 90 और 85, बट इट्स बेटर टू हैव मोर देन 100। सो एक हो गया इंग्लिश स्कोर, दूसरा हो गया GRE स्कोर, तीसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, चौथा हो गया letter of recommendation, fifth is your resume or CV। So you can like look up to some इंस्टीट्यूट लाइक MIT, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड। कहीं तो उनके यूनिवर्सिटी में एक ये सारी यूनिवर्सिटीज में कभी कभार वो लोग एक टेम्पलेट CV दिखा देते हैं कि ग्रेजुएट एप्लीकेशन में कैसा CV होना चाहिए। यू कैन लुक अप टू दैट फॉर्मेट एंड डिजाइन योर CV accordingly। and CV shouldn't exceed like 2 pages। वो 2 पेज से ज्यादा लंबा हो जाता है, वो ज्यादा इतना इतना जो किए हो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो सब डालने की जरूरत नहीं है। तो वो बस क्रिस्प एंड प्रिटी डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव CV होना चाहिए एंड रीडेबल होना चाहिए, प्लीजिंग टू आई। तो ये 5 चीज होने के बाद यू एंटर टू द यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन पेज, जहाँ पर नॉर्मल तुम भरते हो अपना डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि यूएस में there are no cultures that you can it's not mandatory that you need to connect to the professor and see like if he or she wants to take you, but it's a good practice कि US का application cycle starts from October and ends somewhere around December। most of the universities have the application deadline somewhere in December first week, December second week। so it's better to shortlist your university around July August or somewhere around that। तो जब तुम्हारे पास 10 यूनिवर्सिटी के अराउंड 10 डिपार्टमेंट एंड सम फैकल्टीज, 2-3 1-2 फैकल्टी जो भी तुम्हारा रिलेटेड रिसर्च एरिया है
वो स्प्रेडशीट तैयार हो गया, देन यू कैन ईमेल देम with your CV and your research background. So that cover letter of the email should be nice, that what is your background and you are reaching out like उनके lab में ये मतलब research areas है, and you want to try out those, you are interested in those research areas and all those things. फिर this is a very kind of uncertain process. Sometimes the professor did not reply, sometimes they will say okay, I am interested, you can apply, or sometimes they will say, oh, let's have a Zoom call or something, or sometimes they will say, oh, we don't have fund. So it's better to have that kind of reply that we don't have fund. It means like पता चल गया कि जो प्रोफेसर ढूंढ रहे हो उस डिपार्टमेंट में उनके पास तो फंड नहीं है, तो बेटर है कि तुम उधर अप्लाई नहीं करोगे, सो यू कैन अप्लाई एनीवेयर एल्स. बट बहुत सारे केसेस में रिप्लाई नहीं आता है. एंड if sometimes they say कि तुम अप्लाई करो, ये करो, वो करो, then you can apply to university, or you can reach out to the alumni of that particular lab. वो लैब पेज में उनका जाके देखना है कि रिसेंटली ग्रेजुएट कौन हुए हैं, उनको यू कैन कनेक्ट थ्रू लिंक्डइन एंड आस्क कि ये लैब में कल्चर कैसा है, पीआई कैसा है, एंड ऑल दोस रिलेटेड क्वेश्चन. वो थोड़ा फार फेस्ट हो जाता है, बट इनिशियल प्रोसेस में इट्स बेटर टू शॉर्टलिस्ट 15-20 यूनिवर्सिटी और 15-20 प्रोफेसर एंड जस्ट मेल देम, and probably you will get reply from 5 or 6 of them, and based on that you can apply in final like 6-7, because application process में it's expensive. US का application process is pretty expensive. पर application तुम्हारा चला जाता है काफी, I don't know, $100 अराउंड, मतलब इंडियन करेंसी में 8,000 10,000 चले जाएंगे एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन में. तो इट्स wise to settle down somewhere around 7-8 universities and divide them in like 3 sections, like ambitious, moderate and safe. तो अगर 8 यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई 2+3+3, कि 2 ambitious, like you know that these are really out of my reach but I can still try. Right. तो वो वाले कैटेगरी चले जाते हैं कि 2, और 3 ऐसा होता है कि यू आर स्टिल 50-50 की अच्छे यूनिवर्सिटीज तो काफी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मैं एडमिट एडमिशन ऑफर आएगा कि नहीं. एंड 3 इज इन सेफ कैटेगरी कि एटलीस्ट यहाँ से तो देर इज अ मैक्सिमम चांस कि आई विल गेट एन ऑफर. तो ऐसा वाला डिवाइड करके अप्लाई कर देना है. So this is the like overall like view of the application process. And application process are really tiring. Like एक एक application form भर के सारे कुछ upload करके वो काफी extensive exhausting process होता है. तो by the time you are already done with 7-8 university, you will be like, oh ये तो बहुत काम हो गया, अब तो energy नहीं बचा है. It's like that. Okay. Yeah, I think you elaborated so well. It will be really helpful for the student who are हाँ, looking. मैं this is like after I am explaining this after like 4 years, because the last time I did it in 2021. तो मैं आधा तो चीज भूल I गया हूँ. I remember you don't know if doing I all those things in the lab, right? I remember. yeah. So I think you are the right person to guide. Okay, or how is the interaction with the faculty member? I mean, the PhD guide and student. How much time they give, and like, can you meet them Oh, frequently? Yeah. so this is a very individual dependent question, like what kind of PI you have ended up with. ये person to person totally vary करेगा. And one of the most important thing I will recommend at my stage of PhD कि just because your entire PhD academic experience, research experience और तुम्हारा social life सब कुछ depend करेगा only on one person, that is your PI. अगर वो बहुत ही अच्छा इंसान निकल गया, then you have a very like a good work life balance. अगर वो काफी डिमांडिंग, हाँ काफी डिमांडिंग या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाला इंसान निकल गया, देन यू विल बी लाइक टोटली इन ट्रबल. तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरह का पीआई के पास जा रहे हो. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द पीआई बिफोर यू ज्वाइन द लैब. तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के लिए
दिस कैन बी ए प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड आउट. अगर तुम्हारा लैब ऑलरेडी फिक्स हो गया आने से पहले, इट्स लाइक यू डोंट नीड टू कम हियर एंड रोटेट एंड फाइंड ए लैब, देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि तुम्हारा तो लैब ऑलरेडी फिक्स हो गया है, वो फैकल्टी तुमको हायर कर दिया है, देन यू आर गोइंग टू दैट यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइन द लैब डायरेक्टली. तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है बाकी सारे लैब्स को एक्सप्लोर करने में क्या है. अगर वो पीआई अच्छा निकल गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं निकला देन यू हैव टू बी विथ हिम फॉर द रेस्ट 5-6 years. तो इसलिए रोटेशन पॉलिसीज है, स्टिल गिव यू अ चांस दैट वन सेमेस्टर यू हैव टू डू रोटेशन टू ट्राई आउट 2 labs. इन सम यूनिवर्सिटी देयर इज ऑल्सो 3 रोटेशन देते हैं कि यू ट्राई 3 different labs and you talk to other people or the seniors in the department, because sometimes lab के लोग जो current members है they won't tell you the truth. Right. Like Yeah, they वो cannot. बोलेंगे, they can tell you the truth but in a very diplomatic way, that they will थिंक डेट ओ आगे जाके मेरे पीआई को पता ना चल जाए कि मैं पीआई के बारे में ऐसे पीछे बोला हूँ. तो दे विल बी वेरी डिप्लोमेटिक. सो इट्स बेटर कि तुम दूसरे कोई सीनियर जो उस लैब से एफिलिएटेड नहीं है उनसे पूछ सकते हो, डिपार्टमेंट सीनियर से जिनको आइडिया है कि वो प्रोफेसर कैसा है, या फिर जो लैब से ऑलरेडी एलुमनाई है, ग्रेजुएटेड है रिसेंट, उनको कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि लैब का कल्चर कैसा है. बट टू आंसर द क्वेश्चन कि कैसा होता है, मोस्टली इधर कल्चर है कि दे आर प्रिटी सीरियस अबाउट वर्क, लाइक रिसर्च इन, like in general they are pretty serious about research. तो उनका मोस्टली एक तुम्हारा होगा कि वीकली अपडेट हो सकता है, वीकली अपडेट मीटिंग हो सकता है कि एवरी वीक यू हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन विथ योर पीआई जहाँ पर तुम अपडेट कर रहे हो कि व्हाट यू हैव डन योर पास्ट वीक और व्हाट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक एंड ऑल दोस थिंग. एंड देयर कैन बी ऑल्सो ग्रुप मीटिंग, क्योंकि कुछ कुछ में ऐसा होता है कि बड़ा सा ग्रुप है, 8-10 पीएचडी स्टूडेंट है. तो the PI meets everyone on a one-on-one basis weekly, and weekly भी group meeting होता है जहाँ पर पूरा ग्रुप बैठता है, they discuss some general lab issues और किसी का presentation है towards the group, ये करता है. And PI are pretty like responsive in terms कि तुम अगर उनको email कर रहे हो they will revert you back. And also depends like some PIs are really chill, like they actually respect your that work time like 9 to 5. So they will be available at 9 to 5 and they expect कि तुम भी 5-6 बजे के बाद you won't email them unless it's very urgent or it's very necessary. तो वो भी कभी कभार वो नहीं करते कि they maintain that balance of work life. So also nice. And some PIs are like they are really serious about research, so they can mail you at odd hours like 11 p.m. रात को 12-12 बजे. तो and they sometimes expect you that you read the email and revert back to them. So वो थोड़ा सा problematic situation हो जाता है. But in general, compared to India setting, the research setting, especially in IITs, because मेरा experience तो IIT में ही है, IIT गुवाहाटी में, यहाँ पर लोग थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल है towards the research outlook, how to carry out the research, how to organize the lab, how to the administration level पे they focus more on like okay each PhD student कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका प्रपोजल डिफेंस कब आ रहा है, कब वो लोग रेडी होंगे एंड दिस स्टफ. तो थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल है इधर के पीआई. Okay. Okay, amazing. Okay, on a lighter note, now let's talk about life beyond academics. यस. Back to life. कैसा चल रहा है? तो ये आई गेस द फर्स्ट थिंग यू विल कम हियर एंड यू विल एक्सपीरियंस लाइक कल. बहुत लोग बोलते हैं कि कल्चर शॉक लगता है बिकॉज इन इंडिया वी आर यूज टू सो मच थिंग विच इज प्रिटी नॉर्मल, कि मतलब हमारे ये तो हम सोचते भी नहीं है यहाँ पर. वैसे थोड़े ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हो जाता है कि इंडिया में रोड क्रॉसिंग कहीं से भी कर लो, बीच रास्ते Right. में गाड़ी आ रहा है, गाड़ी को रोको रोको, दौड़ गए. यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ तो पहले अगर ऐसे किए तो देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग इन एन एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पर रोड्स इतने लोग नहीं है ना, तो लोग इतने नहीं है. तो गाड़ी एकस्टम्ड है कि जोर से इनका रोड्स भी ज्यादा लंबे लंबे होते हैं और गाड़ी बड़े बड़े होते हैं इन साइज कंपेयर टू इंडिया. तो बहुत स्पीड में जाता है गाड़ी.
तो दे आर एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसे पेडेस्ट्रियन ऐसे भाग जाएगा उनके सामने से रोक के, तो ज्यादा चांसेस है कि तुम ठुक ठुक जाओगे, तो वो तो नहीं करना। वो सिग्नल पे, वो ऐसा भी सिग्नल पे नहीं है कि जिब्रा क्रॉसिंग में है तो हम चले जाएंगे, नहीं, वो वॉक वाला साइन आएगा तभी क्रॉस करना है। लेकिन फिर भी कर लेते हैं लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास क्या होता है कि नॉर्मली गाड़ी थोड़ा धीरे जाता है, लेकिन बाकी जगह कहीं यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं हो तो थोड़ा ध्यान से चलना है। दूसरा है कि अगर तुम सिग्नल ऐसे तोड़ मोड़ के जा रहे हो तो कभी कभार अगर पास में पुलिस है तो पुलिस पकड़ लेगा तुमको कि जे वॉक कर रहे हो तुम, क्यों सिग्नल तोड़े। और दूसरा है कि ऑब्वियसली इंग्लिश में तुमको हर टाइम कन्वर्स करना है। और देर इज अ प्रॉब्लम कि नॉट प्रॉब्लम, यू इट eventually you will get adapt to it, like adapted to it, कि तुम्हारा accent initially will come from India and we are habituated कि तुम इंडियन इंग्लिश बोलने में। तो यहाँ अमेरिका के लोगों को initially you will see that they are facing problem trying to understand you, तो उसका कुछ है नहीं। इट्स लाइक एज द टाइम गोज बाय यू विल जस्ट पिक अप एंड यू नो हाउ टू जस्ट कम्युनिकेट टू देम, टू जस्ट टू कन्वे योर पॉइंट। वो हो जाता है, वो टाइम के साथ चला जाता है कि ठीक है तुम लोगों से बात कर सकते हो, वो हो जाता है। थर्ड इज लाइक सम, देर इज ऑल्सो सम नाइस थिंग्स अराउंड हियर कि यहाँ पर तुमको अगर सोशल लाइफ मेंटेन करना है तो गुड थिंग इज लाइक कि नो वन केयर्स अबाउट योर पर्सनल स्टफ। इंडिया में जैसे वैसा हो जाता है कि अरे अरे मोहल्ले के आंटी टाइप की, अरे कौन कोई ध्यान रख रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ यहाँ पूरा पर्सनल फ्रीडम है। इवन लाइक तुम्हारा अपार्टमेंट, तुम्हारा रूममेट को भी फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाते हो क्या करते हो, कोई ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम ही नहीं है। So you can do your own stuff. No one cares, no one minds, no one interferes, and all those things. Everyone respects your personal boundary and everything. और चौथा हो जाता है कि हम्म, ऐसे घूमने को जिनको पसंद है ये करने के, तो द पार्क्स एंड द ऑल दोस रिक्रिएशनल फैसिलिटी इज प्रिटी गुड, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क्स काफी है। इंडिया में भी नेशनल नेशनल पार्क्स काफी है, बट दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड, जैसे स्ट्रक्चर्ड है कि तुम जा रहे हो, ट्रेल्स है वहां पर, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, गाइड्स है, सब कुछ है। तो यहाँ पर कहीं भी जाओ तो बड़े बड़े नेशनल पार्क्स जो है एटलीस्ट वहां पर काफी वेल मेंटेन्ड है। और लिटरिंग नहीं है कि कहीं भी कुछ भी फेंक दिया, ऐसे नहीं है। यहाँ पर दो अलग अलग सारी चीजें है कि तुम्हारा रिसाइकल बिन अलग है, वेट वेट वाला ट्रैश अलग है। और खुद ही जैसे हम रहते हैं, हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है, यहाँ पर मोस्टली पीएचडी बाहर ही रहते हैं। यहाँ पर वो इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि कैंपस के अंदर रहना पड़ेगा। कैंपस के अंदर बस अंडरग्रेड रहते हैं एंड बाकी मास्टर्स और पीएचडी और पोस्ट डॉक सब बाहर रहते हैं रेंट करके। तो खुद का अपार्टमेंट है, खुद का ट्रैश रहता है, ट्रैश बैग में डालो और एक डेजिग्नेटेड लोकेशन रहता है, बड़ा सा ट्रैश में उधर जाके फेंकना है। तो ये खुद अच्छा प्रैक्टिस रहता है कि हाँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ट्रैश, और ऐसे कहीं बाहर मार फेंकना नहीं है, ये नहीं है। तो एक चीज और, इट डिपेंड्स कि कौन से लोकेशन में हो, कि जैसे बड़े सिटी है, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो हो गया, सिएटल हो गया, एलए, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि यहाँ पर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली जस्ट टू, वन इज कार, सेकंड इज फ्लाइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रेन कुछ नहीं है। और यूएस काफी बड़ा है, तो तुमको कम्यूट करना है सिटी टू सिटी, इधर यू रिलाई ऑन कार कि तुम कार खरीद रहे हो, या फिर तुम कार रेंट कर रहे हो और तुम जा रहे हो दूसरा सिटी, या फिर तुम फ्लाइट बुक कर रहे हो जा रहे हो। देर आर सम बस सर्विस बट these आर नॉट लाइक वेल लाइक मेंटेन्ड और वेल, लाइक अगर तुमको और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है तो कुछ बस सर्विस रहते हैं कि नियर बाय सिटीज में। मतलब इंडिया या फिर यूरोप जैसा काफी एक्सटेंसिव ट्रेन कनेक्शंस नहीं है कि चढ़ लिया और पहुंच गए, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन थोड़ा सा, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा नहीं है इंडिया जैसा। और इसीलिए ये, और लोग बहुत ज्यादा चलने को प्रिफर करते हैं और बाइकिंग करते रहते हैं, ऐसा ही है। तो ये वाला एक हो सकता है कि ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी लाइफ में तो करने को बहुत कुछ है। जैसे सेंट लुइस उतना बड़ा शहर नहीं है, इट्स अ स्मॉल सिटी। तो पास में सबसे बड़ा शहर शिकागो है, 5 hours अवे ड्राइविंग।
लेकिन यहाँ पर भी सेंट लुइस में फिर भी लाइक है करने को कुछ अच्छा खासा। एक फॉरेस्ट पार्क है, वो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क से ही बड़ा सा पार्क है, तो अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। पेड़ है, वो है, लेक है, लेक के सामने आर्ट म्यूजियम है। आर्ट म्यूजियम में अच्छा खासा लाइक यूरोपियन पेंटिंग्स और एशियन पेंटिंग्स, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, सारी चीजें रखा हुआ है एंड फ्री। सेंट लुइस का आर्ट म्यूजियम काफी फ्री है, बट अदर सिटीज का आर्ट म्यूजियम में तुमको लगता है एंट्री फी काफी महंगा रहता है, लेकिन सेंट लुइस का फ्री है। और सेंट वो फॉरेस्ट पार्क में जू भी है, कभी कभार मन हुआ तो जू जू काफी बड़ा है तो जू देख के आ गए। बाकी आसपास मतलब तुम्हारे रेस्टोरेंट्स हैं ट्राई करने को, थिएटर्स है, प्लेस चलता है, या फिर मूवी थिएटर्स है जहाँ पर ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स वाले कभी कभार मूवीज लगता है, बार्स है, क्लब्स है, एंड और बाकी कुछ मतलब आसपास स्टेट पार्क है जहाँ पर कभी कभार मन हुआ गए, हाइक करके आ गए, अच्छे खासे ट्रेल से, और उतना पॉल्यूशंस नहीं है तो ये। और एक चीज शायद नोटिस होगा आके कि रात को तुमको सारे तारे दिख रहे हैं आसमान में, बिकॉज देर आर नो पॉल्यूशंस। मतलब इतना एयर क्वालिटी इतना अच्छा है कि यू कैन सी द एक्चुअल द स्टार्स एंड एवरीथिंग। और थोड़ा सा दूर चले जाए लाइट पॉल्यूशन से, मतलब सिटी लाइट से थोड़ा सा बाहर, और भी तारे दिखेंगे। तो दिस इज वेरी क्लीन एनवायरनमेंट एंड उतना कुछ नहीं। तो लाइफ में कुछ पीएचडी के बाद कुछ बोर मोर हो गए कुछ से, बाकी सब करने को है चीज इधर। तो यही और यही है। बाकी फिर खाने का कैसा है? तुम डेली बनाते खाने का, हो? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन बिकॉज एक्सपेंसिव है बाहर खाना अगर डेली इन। ये और एक चेंज है, दैट्स अ गुड थिंग कि इंडिया में बड़ा इजीली यू कैन गेट आउटसाइड फूड इन अ चीप प्राइस। यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर डेली तो खा नहीं सकते बाहर, तो यू हैव टू मेक योर ओन फूड, कि तुम घर पे बना रहे हो। और ऐसा हो जाता है कि चाहे तुम मास्टर्स में हो और यू आर इन पीएचडी, यू आर टोटली पैक्ड इन द डे टाइम। और डे टाइम में यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, यू आर कमिंग बैक। और समटाइम अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड तुम्हारा रिसर्च है, तुमको मॉडलिंग या सिमुलेशंस नहीं करना पड़ रहा है, कि यू कैन डू इट फ्रॉम होम। लेकिन अगर लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, यू गो समटाइम्स, यू कम बैक अराउंड 7 PM 8 PM, तो थक जाते हैं। तो एनर्जी नहीं रहता कि खाना बनाओ और फिर खाओ, क्योंकि भूखा आए होगे। तो बहुत बार यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि तुम एक बार खाना बनाते हो तो लाइक 3 4 मील के लिए बना देते हो, कि आज रात को मैं खाली टाइम हूँ, रात को खाना बनाया, तो डिनर, नेक्स्ट दिन का लंच, डिनर, नेक्स्ट दिन का लंच, ऐसा 4 दिन का एक साथ बना लिए, खाए। ऐसा हो जाता है। और बीच बीच में जहां पर कभी भी मन हुआ तो बाहर से ऑर्डर कर लिए, या बाहर जाके डाइन आउट कर लिए दोस्तों के साथ। और लोग जो तो वेजिटेरियन है उनको ऐसा सीन है कि डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन पे, कि बड़े शहर में है तो इंडियन ग्रोसरी काफी एक्सेसिबल है, पास में मिल जाता है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर रहता है या एशियन ग्रोसरी स्टोर रहता है, वहां पर इंडियन सेक्शन रहता है, तो इंडियन इंडियन बेस्ड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे सिटी, सेंट लुइस में फिर भी ठीक है, सेंट लुइस में फिर भी 20 मिनट आधा घंटा दूर पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। तो हम महीने में या 2 3 हफ्ते में एक बार जाते हैं, एक बार शॉपिंग करके आ जाते हैं इंडियन स्टोर से। बाकी सारी चीजें तो बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर आसपास में मिल जाएंगे, बट इंडियन स्पेसिफिक वेजिटेबल जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको खाना तो एक बार जाना पड़ेगा 2 3 हफ्ते में। और छोटे छोटे टाउन में तो और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें फिर यू रिलाई कि तुम फिर अलग अलग कुजिन बनाते हो, कि तुम जैसे सिमिलर टेस्ट पैलेट वाले तुम खाना इधर बनाना सीखते हो, या फिर तुम ऑर्डर करते हो। जैसे थाई कुइजिन है या फिर मेक्सिकन कुइजिन है, वो काफी सिमिलर टू इंडियन स्टाइल ऑफ टेस्ट पैलेट है। तो वो तुम बनाना अगर सीख लिए कि कैसे कैसे बनाते हैं तो उससे हो जाता है। वरना तो है कि इजीली अवेलेबल है रेस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, बट इंडियन स्पेसिफिक वेजिटेबल्स बस इंडियन स्टोर में ही मिल सकता है, ये एशियन स्टोर। तो ये तो खाने का हो जाता है शुरुआत में आके, जिनको जैसे हम लोग काफी अक्वेंटेड नहीं है हाउ टू कुक, क्योंकि वो सिखाता नहीं है, किसी को आता नहीं है कि हाँ बाहर जाके कभी खाना बनाना पड़ेगा।
तो शुरुआत शुरुआत में आके वो एक स्ट्रेस हो सकता है कि अरे क्लास जाना पड़ रहा है, रिसर्च करना पड़ रहा है, ये सब चीज करना पड़ रहा है, खाना भी बनाना पड़ रहा है, तो और बर्तन भी खुद धो और वो करो। तो शुरुआत के 2-3 महीना थोड़ा स्ट्रगल रहता है कि कैसे एडजस्ट करना है, फिर एक बार सिस्टम में बैठ जाता है सेट तो चलता रहता है, फिर पता चल जाता है क्या कैसे कब क्या करना है, यही चीज हो जाता ओके। हाँ, सही है। बहुत अच्छे से बोला है। बाकी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे आई बिलीव कि डूइंग अ पीएचडी नॉट ओनली हेल्प यू प्रोफेशनली बट इट मेक्स यू ग्रो एज अ इंडिविजुअली। फॉर यू, है। यस। what have you acquired over there in the last 4 years? If once Last to 4 years, yeah, there's certain like things like I kind of acquire or I kind of like got lessons. Like first of all, पीएचडी हमारे दिमाग में जैसा एक आइडिया लेके आए थे कि वो पीएचडी में ऐसा 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 कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं होता। बट इट्स अ वेरी लाइक अ टफ एंड वेरी Right. डेडिकेटेड डिसिप्लिन जर्नी आई विल से। तो मतलब ये हमारे दिमाग में तब बस द रिसर्च एक्सपीरियंस वी हैड के मास्टर्स का रिसर्च और बहुत चिल रहता था, ज्यादा प्रेशर नहीं रहता था। यहाँ पर पीएचडी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और तुमको वो सिखाता है कि भाई ये तुम्हारा जॉब है, तो तुमको रेस्पॉन्सिबल होना सिखाता है कि तुम ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते पीएचडी में। इरेस्पॉन्सिबल हुए तो तुम्हारा रिसर्च अच्छा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा पीआई तुमको डांटेगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम ज्यादा स्ट्रेस में आओगे। तो रेस्पॉन्सिबल होना और डिसिप्लिन होना और पेशेंस रखना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अरे ये एक्सपेरिमेंट काम क्यों नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसे स्ट्रेस, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 4-4 5-5 6 महीना, कभी कभी 7-8 महीना तक एक्सपेरिमेंट किए जा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, यू आर गेटिंग नथिंग। फेलियर फेलियर फेलियर, तो हाउ टू डील विद फेलियर, ये सिखाता है आपको पीएचडी। एंड फिर उसमें फिर सबसे बड़ा लेसन हमको सिखाता है, जो इंडिया में काफी उतना मतलब इस चीज पे बात नहीं होता, कि मेंटल हेल्थ कैसे सही रखना है पीएचडी के टाइम। क्योंकि यहाँ पर यू आर नॉट इन इंडिया, योर सपोर्ट सिस्टम इज बैक इन इंडिया, होम फ्रेंड सर्कल सब इधर है। इधर आए हो, इधर भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल रहेगा, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड सर्कल सब पीएचडी कर रहे हैं या फिर सब मास्टर से, सबका सेम प्रॉब्लम चल रहा है या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो खुद का ध्यान कैसे रखना है अकेला होके, दैट्स द बिगेस्ट लेसन। और कोई सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो गया, ज्यादा से ज्यादा तुम घर से बात कर सकते हो, घर वालों को बोल सकते हो, रो सकते हो, वो कर सकते हो, बट एट द एंड अगले दिन सुबह उठ के तुमको जाना है लैब खुद ही, और तुमको काम करना है। काम नहीं करोगे तो आगे और भी पाइल अप होता जाएगा। तो मेंटल वेलबींग कैसे रखना है, कि खुद का ध्यान कहाँ रखना है, कि कैसे खुद को कंडक्ट करना है, और परेशान किस चीज से नहीं करना है। कि इंडिया में लिबर्टी मिल जाता था, अरे कर लेंगे देख लेंगे जो हो जाएगा देखेंगे, यहाँ वो एटीट्यूड उतना नहीं चलेगा, कि खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा है कि तुम खुद का फाइनेंसेस खुद संभालते हो। तो बहुत लोग इंडिया से आते हैं कि जिनका मतलब तब फाइनेंशियल एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए। यहाँ पर आते हो और यू आर यू हैव स्टार्टेड अर्निंग इन डॉलर्स, और यहाँ पर एक्सपेंसिव भी है जहाँ पर तुम खर्चा करते हो। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हो, वो करते हो, डेट में चले जाते हो। सिंस देर इज अ कल्चर ऑफ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर पूरा क्रेडिट बेस्ड पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड मिल गया, तुम स्वाइप करते गए, बिल एक्यूमुलेट होता गया, तुम्हारा स्टाइपेंड आया, और वो स्टाइपेंड इज नॉट एनफ टू पे ऑफ द क्रेडिट कार्ड। फिर तुम फंस जाओगे, क्योंकि उसका फिर इंटरेस्ट रेट होता है, वो होता है। तो इट्स हो सकता है 1-2 बार गलती करोगे देन, बट यू विल गेट अ लेसन कि हैंडल कैसे करोगे फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल चीजें हैंडल कैसे करना है, और मतलब खुद का ध्यान कैसे रखना है, खुद का वेलबींग मेंटल हेल्थ वो कैसे रखना है। तीसरा है कि जब तुम पीएचडी कर रहे हो एज अ रिसर्चर, हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल एज अ ह्यूमन बीइंग एंड डिसिप्लिन। मतलब ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स तुमको पीएचडी सिखाएगी। तुम कितना भी लेड बैक या कितना भी इग्नोरेंट हो जाओ, लेकिन ये सारी चीजें कुछ कुछ ना कुछ डिग्री तक सीख के तुम निकलोगे पीएचडी डिग्री से, और जो काम आएगा आगे। कि और यहाँ पर थोड़ा पीएचडी में
कोलैबोरेटिव नेचर है तो कभी कभार कॉन्फ्रेंस होता है, कभी कभार कुछ मीटिंग होता है, देन यू गेट टू नो टू द अदर पर्सन, उनसे बात करते हो, कोई कंपनी आ गया हो, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो, तो थोड़ा जो नेटवर्किंग है वो थोड़ा देखने को मिलता है। देन यू गेट टू नो कि अच्छा कैसे खुद को मतलब खुद का आइडिया या फिर खुद का थॉट्स सामने को कैसे समझाना है। ये एक चीज सिखाता है पीएचडी की, इट्स बेटर कि खुद का जो पॉइंट्स है, खुद का जो मतलब आइडियाज है, कैसे कम्युनिकेट किया जाए दूसरे लोग को, जो हो सकता है कि तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो। तो ये सारे चीजें कि कम्युनिकेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, एंड फाइनेंशियल हैंडलिंग हो गया, और खुद का वेलबींग हो गया, ये सारे चीजें सिखाता है। जैसे शुरुआत शुरुआत में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि काम कर रहे हैं, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर ऐसा हो गया कि तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू विल गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। तो मैं अपना मतलब उतना ध्यान नहीं रखा, ठीक है मेरे को काम करना है, कैसे भी करके रिजल्ट लाना है। ये वाला एटीट्यूड इंडिया में काम कर सकता है शायद, जो इंडिया में भी करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देन आई शुड हैव लाइक स्टॉप्ड एंड आई शुड हैव टेकन सम हॉलीडेज और सम रेस्ट, फिर वापस आ जाता हूँ। प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर तुम करते जाओगे आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी बर्न आउट। एक बार बर्न आउट हो गए, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहा, तो तुम्हारा एफिशिएंसी गिरते जाएगी, और एफिशिएंसी एक बार गिरने लग गया तो तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। फिर तुम वो विशेष वाला लूप में फंसते जाओगे कि तुम्हारे पास एनर्जी भी नहीं है, तुम काम अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से तुम और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो ये वाला चीजें सीखने को मिला था पीएचडी में कि हाँ ये हो सकता है काफी। How is Lucifer and his siblings? They are अरे helping you. लूसी मेरा, आई गेस कहाँ, लूसी आई 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 ब्रिंग लूसी, वेट, Okay. दिस लूसी, से हाय लूसी। Hello. तो दिस इज टू The इयर्स Choti कैट लूसीफर। हाँ, boy or girl? वो खेल रहा है। हाँ बड़ा है, काफी बड़ा है, एंड ही इज ऑल्सो हेवी। जब लाया था, अडॉप्ट किया था, बहुत छोटा सा था, छोटा लेकिन अब था। काफी बड़ा हो गया। और भी तो दो ये है ना? काफी रहता है। हाँ, मेरा हम्म। रूममेट के पास भी एक है, वो एक साल छोटा है, उसको भी लेकर आता हूँ। उसका नाम नोआ है। नोआ, yeah. दिस इज नोआ। नो नो Hello. नो नो। So cute. हाँ, तो दोनों भाई भाई हैं, आपस में मस्त खेलते रहते हैं। अभी तो उनका खेलने का टाइम है, मतलब 12 साढ़े 12 बजे खेलेंगे, फिर व्हेन वी गो टू स्लीप, तो वो फिर आके सो जाते हैं अपने अपने पास। लूसी तो मेरे साथ मतलब बेड में आ जाता है, मेरे पैर के पास, अरे वो आके सो जाता है मस्त। और जब नहीं रहते वो लोग रहते हैं अपने में हाँ दिन भर। मतलब मॉर्निंग टाइम में तो हम चले जाते हैं, तो वो आपस में घर पे रहते हैं, वो लोग सोते रहते हैं, उनका कैट ट्री है उस पे पड़े रहेंगे। फिर जब हम आएंगे शाम को तब आ जाएंगे, और फिर उनके साथ कभी कभार ऐसे खेलते रहेंगे। ऐसे वो आपस में मस्त खुश हैं कि दो दो आपस में खेलते हाँ। रहते हैं। और जब नहीं रहते ओके। तो पास में भी दोस्त हैं जिनके पास कैट्स है, तो हाँ। हम, मैं और या फिर मेरा रूममेट नहीं रहते तो हम दोनों दे देते हैं उनको, तो वो लोग टेक केयर करते हैं, वो है। सही है। ओके, आई थिंक हम ये स्टॉप करते हैं। तो कंटिन्यू वैलिडिटी कर बिकॉज सकते हो, यदि ऑफ और भी कुछ पूछना है कंटिन्यू me, कर सकते हो वैसे। I think you have covered everything very well. It will be really helpful for students who are looking for a PhD abroad or even masters. I'm sure they will get a lot of insights because you covered not only at surface level, but you also covered the human side of your life being there. So it's really helpful. Anything you want to add? And we can close that. No, the anything is like probably to the students who are coming to either pursue masters or PhD abroad. Initial days can be pretty overwhelming, or you can feel lonely, but with the
passing of time, you will meet people, you will make friend circle, you will get to know other people, and it's a pretty good exposure. Sometimes क्या होता है कि like you will get to know different people from different part of the world. You can make American friends, or like let's say इंडियन स्टूडेंट्स तो रहेंगे, काफी इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स का तो फ्रेंड सर्कल बनेगा तुम्हारा। बट तुम्हारे क्लासेस में, तुम्हारे कोर्सेस में, या फिर तुम्हारे लैब में तुम्हारे पास अमेरिकन हो सकते हैं, हिस्पैनिक लोग हो सकते हैं, एशियन लोग हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं, ताइवानीज हो सकते हैं, जापानीज हो सकते हैं, कोरियन हो सकते हैं। तो उनसे बात करके फिर तुमको दूसरे कल्चर के बारे में पता चलता है कि इंडिया में हम रह गए तो ग्लोबल एक्सपोजर हमको बस हमारा इंटरनेट के थ्रू जो मालूम है, बट कभी आपस में डायरेक्ट बात नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो तुम बात करके तुम कल्चर के बारे में बात सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन ट्राई करते हो, समझते हो कि अच्छा बाकी सारे जगह पे बाकी सारी ये चीजें चलता है, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर। और फिर तुम्हारा वो शुरुआती स्ट्रेस या शुरुआती वाला जो प्रॉब्लमेटिक स्ट्रगल पीरियड, इट कैन बी ओवर, लाइक कि जब तुम्हारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है, फिर वो आपस में सिखा देता है। पीएचडी इज लाइक पीएचडी इन अब्रॉड विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग दैट हाउ टू हैंडल योरसेल्फ इन योर अप्स एंड डाउन्स। तो उस पे तो जाना ही है, ऐसा है बहुत। डोंट विश कि तुम्हारा पीएचडी वाला जर्नी काफी स्मूथ जाएगा, which is good in a way, but don't expect, because you won't get anything out of it, then you don't learn anything। तो थोड़ा ऊंच नीच वाला रास्ता होगा तो सीखने को काफी कुछ मिलेगा, and it will help you eventually in your later phase of career। but यही यही मेरा Okay, because experience है। तो it will yeah, be yeah, good please for, continue. yeah, it will be good for the Yeah. upcoming students to experience all these kind of things. So, Mhm. and it was nice talking to you, Didi, and sharing my experience as the PhD journey, PhD candidate. And it was really nice to share all these kind of experiences. Right. Because this 4 or 5 years is temporary as compared to your whole life. Yeah, So it will teach you a lot and prepare you for the rest of your life. So yeah, thank you, Bedati. it's true. Thank you once Thank you, again. thank Thank you you, so much. Okay. Bye. thank you, Didi. Thank you, Didi. Bye, Bye, bye. Bye.